So let us start with the next phylum, algae. So algae is that class of plants which is chlorophyll bearing, and it is a simple thalloid. Means the characteristic is the algae. So algae is that class of Algae is that class of plants which is chlorophyll bearing and they are autotrophic in nature. Means the first classification of algae is it is a simple thalloid, autotrophic in nature and chlorophyll bearing. Largely it is found in freshwater and marine organisms. They occur habitats means stones, soils and woods. Their variable sizes ranging from different color and colonial form, for example, volvox and eulothrix. Very few are marine, and they are developing into a thallus. So main characteristic feature of algae will be they are chlorophyll bearing, ऑटोट्रॉफिक एंड थैलॉइड्स. थैलॉइड्स का मतलब होता है सेल्स का क्लस्टर जो एक साथ इकट्ठा हो जाता है. And with lichen, with fungi, they form a special symbiotic relationship that is lichens. और colonial form और single filamentous कई shapes, कई habitat में ये रह सकते हैं. Now coming to reproduction, तो reproduction इनमें vegetative, asexual और sexual तीनों mode से हो सकता है. All three modes are possible in algae. Vegetative reproduction through fragmentation, और फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू थैलस, यानी कि छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स भी पूरा थैलस यानी कि पूरा क्लस्टर या कॉलोनी बना सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट स्पोर्स के थ्रू होता है और सबसे कॉमन स्पोर है जूस स्पोर्स, और दे आर फ्लैजिलेटेड मींस मोटाइल और जर्मिनेशन में गिव राइज टू न्यू प्लांट. नाउ कमिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो दो तरीके के गैमीट से हो सकता है जो साइज और शेप में सिमिलर होते हैं. फ्लैजिलेटेड मोटाइल यानी कि यूलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल लेकिन सिमिलर इन साइज जो कि स्पाइरोगायरा में होता है. और ऐसे जो साइज और शेप में सिमिलर होते हैं दे आर आइसोगेमस, लेकिन डिसिमिलर अगर साइज में होंगे जैसे कि यूडोरिना उनमें एन आइसोगेमस होता है. फ्यूजन एक लार्ज और नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गेमीट, स्मॉलर मोटाइल मेल गेमीट इज टर्म्ड एज oogamous. आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल यानी कि साइज में बड़ा और नॉन मोटाइल फीमेल गेमीट और छोटे मोटाइल अगर मेल गेमीट के साथ फ्यूजन होता है तो दैट इज नोन एज oogamous. यानी कि oogamous में फीमेल गेमीट साइज में बड़ा है और नॉन मोटाइल है, मेल गेमीट साइज में छोटा है और मोटाइल है, दैट इज oogamous, जो वोल्वॉक्स और फ्यूकस में होता है. दीज आर द एग्जांपल्स of algae. Now algae further classification is based on their you can say the chemicals present in it, that is chlorophyll content or the various other coloring agent. Half of the total carbon dioxide on earth is carried out by algae through photosynthesis. यानी कि algae इतने ज्यादा अमाउंट में है, अगर कहीं भी पानी वगैरह में डिपॉजिट हो जाए तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन नहीं रिलीज कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा फोटोसिंथेसिस में algae absorb कर सकता है. यानी कि it also help in environment to regenerate. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen, और पानी में dissolved oxygen का लेवल भी ये बढ़ा देते हैं. और पैरामाउंट इंपॉर्टेंस में प्राइमरी प्रोड्यूसर भी है, एनर्जी रिच कंपाउंड भी है बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जैसे पोरिफेरा, लेमिनेरिया, सरगासम. इनमें 70 ऐसी मैराइन स्पीशीज है जो एज फूड कंज्यूम किए जाते हैं सीज वगैरह में. Certain marine algae, red algae, brown algae, algin, अपनी different carragin which are used commercially. agar commercially produced है जिसमें gracilaria are used to grow microbes and preparations of ice creams and jelly. Chlorella unicellular, very important. Chlorella is unicellular alga rich proteins used as food supplement even by space traveler. तो स्पेस ट्रैवलर क्लोरेला एल्गी नाम की एल्गी को यूज करते हैं जो कि यूनिसेलुलर है एज फूड इन द स्पेसक्राफ्ट. द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू मेन 3 कैटेगरीज, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी. मतलब एक बार सारे फीचर्स हम फिर से इसके रिवाइज करते हैं. एल्गी क्या है? एल्गी एग्जिस्ट इन थैलॉइड्स यानी कि थैलस. It can be marine, habitat can be marine, fresh water or
you can say water, stagnant water, any. Then they are autotrophic in nature, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और डिफरेंट कलरिंग एजेंट भी है. देन दे डिफरेंट साइज और फॉर्म के हैं, वेरिएबल हैं, वेरिएबल हैबिटेट में पाए जाते हैं, मेराइन भी होते हैं, कैल्प्स यानी कि कुछ मेराइन फॉर्म्स हैं जो कैल्प्स के फॉर्म में होते हैं, यानी कि मैसिव प्लांट बॉडीज, यानी कि कैल्प्स, कैल्प्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. कैल्प्स क्या है कि जो मेराइन एल्गी है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा एक बड़े कह सकते हैं जत्थे में प्रेजेंट होते हैं जो एक लार्ज प्लांट बॉडी को रिजेंबल करता है. रिप्रोडक्शन इनमें तीनों मोड्स के थ्रू हो सकता है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. तो वेजिटेटिव थ्रू फ्रैगमेंटेशन और छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स पूरा थैलस बना सकते हैं. एसेक्सुअल यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पोर्स के थ्रू होते हैं जो कि जू स्पोर्स हैं, जो कि नया प्लांट खुद बना सकते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें दो तरीके का होता है, एनाइसोगेमस एंड आइसोगेमस, यानी कि आइसोगेमस में साइज और शेप सिमिलर होगा और एक फीमेल और एक मेल गेमीट फ्यूज करते हैं. एक मोटाइल भी हो सकता है, एक नॉन मोटाइल भी हो सकता है, फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है. लेकिन एन आइसोगेमस में दोनों के शेप और साइज डिफरेंट होते हैं. और अगर ऐसा फ्यूजन होता है जिसमें एक फीमेल गेमीट लार्ज इन साइज है, नॉन मोटाइल है, और मेल गेमीट स्मॉल है और मोटाइल है, और अगर इसका फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उसे oogemus कहते हैं. यानी कि sexual reproduction can occur through three modes, anisogamous, isogamous and oogamous. इसके बाद एल्गी के बहुत यूजफुल हमारे बहुत यूजेस भी हैं क्योंकि हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन फिक्स्ड बाय एल्गी. वो इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ये फिक्स कर देते हैं और एनवायरनमेंट में या पानी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं. और एज फूड भी बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए ये यूज होते हैं बिकॉज दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. तो लाइफ साइकिल या फूड साइकिल एक्वेटिक एनिमल्स की ये बैलेंस कर देते हैं. बहुत सारे स्पीशीज हैं जो कि एज फूड एज इट इज यूज किए जाते हैं, पोरीफायरा, लैमिनारिया और सरगैसम. 70% ऑफ दिस मैराइन एल्गी एज इट इज फूड में यूज होती है. रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनमें ज्यादा होती है और कमर्शियल यूज इनका बहुत ज्यादा होता है. और उसके बाद यू कैन से क्लोरेला एक ऐसी यूनिसेलुलर एल्गी है जिसे स्पेसक्राफ्ट में एज स्पेसक्राफ्ट में यूज किया जाता है. इवन द स्पेस ट्रैवलर्स एज फूड इटसेल्फ और एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरोफिल एंड कलर कंटेंट कैन बी क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड प्रोडोफाइसी.